बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 16 आज लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। टुडे आवर टॉपिक इज मसल्स। मसल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स: स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल एंड skeletal muscles. First we will discuss about smooth muscles. Smooth muscles are the earliest form of muscles which are present in all animal kingdom. They are long and spindle shape and they are uninucleated, यानी हर एक के अंदर एक एक न्यूक्लियस मौजूद होता है. There are no striations, यानी इनके अंदर स्ट्रिप या स्ट्रेशंस जो है वो मौजूद नहीं होती. They are involuntary in action, यानी ये खुद ब खुद काम करते हैं. ये अपनी मर्जी से हम इनको वर्किंग इनकी नहीं करवा सकते. फाउंड इन वेसल्स यानी ब्लड वेसल्स में, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में हमें मिलते हैं. इसके अलावा डाइजेस्टिव ट्रैक में और मेनी अदर ऑर्गन जो हैं उसमें हमें स्मूथ मसल्स मिलते हैं. डायग्रामेटिकली भी हम देख सकते हैं कि स्मूथ मसल जो हैं दे आर लॉन्ग एंड स्पिंडल शेप एंड दे आर प्रेजेंट इन मेनी टाइप ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स. नेक्स्ट इज द कार्डिक मसल्स. उसके नेम से समझ लग रही है कि दे आर द मसल्स ऑफ हार्ट एंड दे फॉर्म मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द हार्ट एंड हार्ट वॉल्स आर मेड अप ऑफ कार्डिक मसल्स. दे आर प्रेजेंट इन चेन ऑफ सिंगल सेल्स एंड दे आर ऑल्सो यूनिन्यूक्लिएटेड. इनके अंदर भी एक एक ही न्यूक्लियस होता है, बट दीज चेन्स ऑफ cells are like fibers and they are interconnected with each other. और इनके दरमियान जो है यहाँ पे इंटरकनेक्शंस हैं बकायदा, लेकिन हर एक के अंदर एक एक न्यूक्लियस जो है वो पाया जाता है. एंड दे आर आल्सो स्ट्रेटेड मसल्स. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द skeletal muscles. Skeletal muscles, these are attached with the skeleton and they help in the movement of the bones. Skeletal muscles are voluntary in action and they are stripped or straighted muscles. Stripped और straighted क्यों कहा जाता है? Because they have light and dark bands. फॉर एग्जाम्पल इन ट्राइसेप्स एंड बाइसेप, हमारे जो कंधे के, हमारे जो आर्म के मसल्स हैं, शोल्डर के मसल्स, ट्राइसेप और बाइसेप्स, उनके अंदर बकायदा डार्क एंड लाइट बैंड्स होते हैं. वो हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि ये लाइट और डार्क बैंड्स किस तरह से बनते हैं. इन बैंड्स की वजह से हम इनको स्ट्रेटेड या स्ट्रिप्ड मसल का नेम देते हैं. और ये मसल्स जो हैं दे आर अटैच विद द बोन्स बाय बंडल ऑफ कोलेजन known as non-elastic fiber, that is tendon. Here is a diagram. We can see that is the bone and that is the muscle, and muscles are attached with the bone with the help of tendon. Tendon is a non elastic and collagenous portion which is known as tendon. Okay, next is the skeletal muscle fiber. Muscles जो हैं they are made up of muscle bundles and muscle bundles have muscle fibers. So each muscle fiber is a long cylindrical cell with a multiple oval nuclei arranged in an under सार्कोलेमा. सार्कोलेमा जो है दैट इज अ मसल सेल मेम्ब्रेन. जैसे कि सेल मेम्ब्रेन होते हैं, इसी तरह से सार्कोलेमा जो है वो मसल सेल की मेम्ब्रेन को कहा जाता है. दैट इज द सार्कोलेमा. और इसके अंदर हमें बकायदा ये न्यूक्लियाई जो है वो नजर आ रहे हैं, बिकॉज स्केलेटल मसल हैव मल्टी न्यूक्लियाई. तो ये इसके अंदर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है. दैट इज द सार्कोलेमा एंड the yellowish portion is present here is known as sarcoplasm, that is the cytoplasm, and these points are known as mitochondria. So their diameter is round about 10 to 100 micrometer. Next is the sarcoplasm. Sarcoplasm of the muscle fiber is just similar to the cytoplasm of the other cells, but it contains large amount of stored glycogen and a unique type of oxygen bonding protein known as myoglobin. A myoglobin is a red pigment that stores oxygen and mostly present in muscles. Next is the diagram. Here we can see the tendon and then muscle. These are the muscle bundles, and further muscle bundles have muscle fibers. Each muscle fiber, each muscle fibers are covered with the membrane, which is known as sarcolemma, and muscle fibers contain the nuclei. And each muscle fiber is further divided into myofibrils, and myofibrils are further divided into myofilaments or microfilaments. So the diameter of muscle fiber is 10 to 100 micrometer, and myofibril diameter is 1 to 2 micrometer. Here is a diagram which is showing the different bands of dark and light present in the muscles. We can study them in detail. Okay, next is the point ultrastructure of skeletal muscle fiber. अंडर हाई मैग्नीट्यूड अगर हम मैग्निफिकेशन में देखें तो हमारे जो मसल फाइबर्स हैं दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मायोफाइब्रिल्स, जिनका मैंने अभी जिक्र किया कि दे हैव डायमीटर 1 to 2 माइक्रोमीटर एंड दे आर प्रेजेंट इन एंटायर लेंथ ऑफ द सेल. सार्कोमेयर एक टर्म है हम यूज करते हैं विच इज अ स्मॉल कॉन्ट्रेक्टाइल
contractile unit and it consists of series of dark and light band. इसमें डिफरेंट टर्म्स हम यूज करेंगे. ए बैंड हम यूज करते हैं फॉर डार्क बैंड विच इज एन आइसोट्रोपिक दैट कैन पोलराइज द विजिबल लाइट. एंड आई बैंड दैट इज अ लाइट बैंड which is isotropic and non-polarizing. H zone a lighter strip in middle section of the A band and M line is bisection of the H zone. Z line is midline of the I band. एज जोन जो है एच इज फॉर हेल. हेल का मतलब होता है जी ब्राइट. इसी तरह से एम फॉर मिडल और जी जो है दैट मीन्स जीवान है जिसका मतलब होता है बिटवीन. इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पर एक डायग्राम दी हुई है, इसके जरिए हम इस चीज को क्लियर कर सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के जो बैंड्स हैं लाइक जो रेड कलर के दिए हुए हैं दीज आर द थिन फिलामेंट यानी आई बैंड्स हैं यानी थिन फिलामेंट से बने हुए. इसको भी हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में भी डिटेल से पढ़ेंगे. और जो ब्लू कलर के हैं दीज आर द थिक फिलामेंट विच फॉर्म ए बैंड. अब जब ए बैंड की जो टोटल लेंथ है उसको हम नाम देंगे, ये पूरा जो पोर्शन आ रहा है इसको हम नाम देंगे ए बैंड. अगर इस तरफ से लाइट डाली जाए तो इस तरफ जो डार्कर बैंड आएगा दैट विल नोन एज ए बैंड. और इधर से लाइट डाली जाए चूंकि ये थिन है तो इधर हमारे पास लाइटर बैंड आएगा तो दैट इज नोन एज आई बैंड. आई बैंड को इंटरसेक्ट करने वाला जो लाइन है वो कहलाएगी जी लाइन. इसी तरह से इस तरफ आई बैंड को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन जी लाइन कहलाएगी. जबकि जो हमारी ए बैंड को अंडर इंटरसेक्ट करने वाली जो लाइन है दैट इज नोन एज एम लाइन. और इसके अलावा इसमें हेल एज जोन जो है वो हम देख सकते हैं कि वो पोर्शन जहां पर सिर्फ और सिर्फ आई ए बैंड है यानी इसके अंदर ओवरलैप नहीं हुए हुए आई बैंड या थिन फिलामेंट जो है ओवरलैप नहीं हुए, ये बीच का जो पोर्शन है दैट इज नोन एज एज जोन दैट इज हेल जोन. ठीक है. तो दो जी लाइंस के दरमियान यहाँ से और इस तरफ से जी लाइन का जो पोर्शन है ये एक सार्कोमियर कहलाता है. सार्कोमियर मेयर मतलब होता है यूनिट. तो ये एक यूनिट है जो कि जिसमें हम आगे ये स्टडी करेंगे कि किस तरह से मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है. इसके बारे में जो भी डिस्कशन होगी वी विल डिस्कस इन आवर डिस्कशन लेक्चर. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.